तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? Before I open it up to understand your research difficulties, certain challenges I would like to mention before you certain challenges, which is very important. Research के बारे में, this is more about the principles and ethics about it. Okay, and then I'll tell you about the kind of research I do. Okay, which you can think of and relate at some point of time, because I believe that the kind of research I do is certainly not written in the book, because हम prefer नहीं करते हैं book में जो चीज़ है हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, इंटरनेट से तो बिल्कुल ही नहीं. तो आइडिया यही है कि every time I do something I try to think beyond the box. इससे हमें लगता है कि my brain would be demented less. As you think more, there will be more vascularity. तो पहले हम शुरू करते हैं some of the challenges which are some of the threats in undertaking research which I must take care. आप उसको फ्लिप कर दो. अच्छा एक मिनट बैक में ये WBSU में एक बार देखो तो. हाँ, इसको जरा आप लोग देख लो एक बार, जो मैं बता रहा था जॉब के बारे में. ठीक है, इसको जरा पढ़ के चलो, क्योंकि इसमें कुछ समझाना तो है नहीं. बेसिक आइडिया यही है टू टेल यू अबाउट द जॉब्स. There are so many misconceptions we have about psychology, and that's the reason we do not get job. The last point देखो, if I opt for psychology, I am limiting my options. Psychology पढ़ो तो आपको job नहीं मिलेगी. Next. Excuse me, sir. Sir, I would like to add one more thing with that. People usually think that psychologists are for social help. They are for social services, so they should not ask for money, whatever services they are providing. This is also a general misconception among people. That is probably, yes. They believe that psychologist means only counseling. Yes. You do and who are ultimately doing counseling? Those who are not in psychology. Psychologists again, actually they are doing counseling. So ये the general misconception है, psychologists are only meant for volunteering. But hardcore psychologists are actually no less than physicists or biologists. My personal my students, those who are in psychology, most of them are working with medical professionals or engineers. And they are very, I think, out of I mean, those who have done PhD with me in BHU was fine, but mostly those who have done with defense and with engineering institutes, they are doing hardcore sciences. So it's difficult to change people's mind, but you can change yourself. We can't change people, but we can change ourselves. चल next चलो. देखो कैरियर चूज करते समय ना आपको ध्यान देना पड़ेगा आप चाहते क्या हो.
हम लोगों में कंफ्यूजन बहुत है। अब इधर आ जाओ, देखो ना इसको, इधर आ जाओ। ये सबके लिए है, खाली साइकोलॉजी के लिए नहीं है। Psychology also belongs to social science and social science is our mother subject. देखो हमारे भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोग साइकोलॉजी चॉइस वाज माय चॉइस और माय कंपल्शन, वी डोंट नो। कोई भी सब्जेक्ट, इट इज पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट और पार्ट ऑफ माय एबिलिटी, वी डोंट नो। आई वांट जॉब तो हम चाहते हैं, पर स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं या डायनामिसिटी के लिए चाहते हैं? जॉब पाते समय सोचते हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, पाते ही मेरे को लगता है नहीं डायनामिसिटी चाहिए, क्योंकि अब स्टेबिलिटी डायनेमिक वाले तो कभी नहीं चाहेंगे स्टेबिलिटी। और देखो इसलिए आईटी वाले हमेशा जॉब हॉपिंग करते हैं। क्यों जॉब हॉपिंग करते हैं? तो उन्हें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। हम ब्रांड चाहते हैं या प्राइड चाहते हैं? जो प्राइड चाहता हो वो दे वांट ए डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। जो ब्रांड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए डिफरेंट जॉब है। हम पावर चाहते हैं या अचीवमेंट चाहते हैं? वी डोंट नो। हम लाइफ चाहते हैं या करियर चाहते हैं? वी डोंट नो। और अभी तक कंफ्यूजन बहुत है, एंड बिना इन कंफ्यूजन के जो आंसर, बिना इस कंफ्यूजन के आंसर दिए तो जॉब ढूंढना ही मुश्किल है। अगर आपको लगता है कोई भी जॉब मिल जाए हम करें, तब तो बात अलग है, देन इट्स ए डिफरेंट इशू। बट आपको अगर लगता है नहीं, आप पीएचडी तक कर रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरह का माइंडसेट को अगर आप नार्चर करें तो इट्स नॉट गुड ना। इस लेवल तक पहुंचने के बाद ये ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट, देखो इतने सारे ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी, so many branches we have. ज्यादातर हम बेसिक ब्रांचेस में ही रहते हैं, डायरेक्टेड बेसिक ब्रांचेस में हम कम काम करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, पूछो। None of us are doing PhD on directed basic branches. None of us. But psychologists can actually do any one of these. I have to, once again, I feel bad for giving my reference, but I'm once again telling you that I did not find any difficulty in coaching PV Sindhu because I coach in Gopichand Academy. Also Abhinav Bindra, they are all associated with us for mental conditioning. And they find it so important. It's the same resilience training what I do for military. ऐसा भी नहीं है कि हमारे, I am not a sports person, but they find these principles so important. So none of us work in sports, none of us work on human engineering. जैसे कल जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि हम अगर लेफ्ट हैंडर हैं और लेफ्ट फुटर है मान लो, और हम स्कूटर चला रहे हैं तो हम तो एक्सीडेंट करेंगे, है ना? तो can't I make a scooter with left-footed brake? It's possible. हम गियर भी चेंज कर सकते हैं गाड़ी का। लेफ्ट फुटर होने पे ज्यादातर एक्सीडेंट तो ये हो रहा है कि आप ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर पुश कर देते हो, ज्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग में सच है ये सब। School psychologist, you go to any school, NCERT has made it mandatory that every school should have a psychologist, but we don't do PhD in that. हम लोग अल्टीमेटली वो वेलबींग पे ही चले जाएंगे, कोपिंग स्टाइल में ही चले जाएंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसुएड यू, डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज यू विल आल्सो गेट योर स्टूडेंट्स। इनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा
कि बेसिक इज फाइन। देखो ABCD तो हम सब लोग सीखते हैं, और उसके बाद वर्ड मेकिंग भी टीचर सिखा देते हैं। सेंटेंस तो अपने को बनाना होता है। अगर आपको कविता लिखनी है सेंटेंस के बाद, तब तो अपना जो टैलेंट है उसे यूज करना ही पड़ेगा। और हम ABCD लेके नहीं रहते, लेके तो हम रह नहीं सकते। Ultimately we have to reach to that level. तो डायरेक्टेड बेसिक रिसर्च पे अपना जो मान लो, यू कैन थिंक ऑफ डेवलपिंग इवन ए स्टार्टअप। व्हाई नॉट? 3 लोग मिलकर डिसाइड किए कि हम लोग रिक्रूटमेंट के स्टार्टअप शुरू करेंगे, जैसे IIT वाले कर रहे हैं, बहुत सारे कर जैसे even as a psychologist, school psychologist, you develop a startup, you develop a NGO, you develop a startup, you develop an entrepreneur activity. Anything is possible, and all of them are earning good money. All of them, and they don't bother about job. Next, चलो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में तो देखो इस देश में 910 यूनिवर्सिटी है, 12,000 से ऊपर कॉलेज है, 2 लाख से ऊपर स्कूल है, सब में साइकोलॉजिस्ट चाहिए। हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? तो कहीं BHU में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली, वी डोंट गो बियॉन्ड दैट ना। डायरेक्ट सीधे रजिस्ट्रार को या स्कूल अथॉरिटीज को या कॉलेजेस को अप्लाई कर लो, दे विल नॉट गिव यू आंसर, पर इनके उस पर पड़ा रहता है। And these are also important jobs. School psychology has become such an important job these days. School psychologist. Next. कोई क्वेश्चन होगा? सब में साइकोलॉजिस्ट, और लोग फिजिक्स पढ़ के साइकोलॉजी में MA करके ये सब जॉब में जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ के साइकोलॉजी में मास्टर्स करके इन सब जॉब में जा रहे हैं सब। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का देखते हो हम लोग? नाना फर्सी देखा था सर, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं थी सर। 2016 के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब निकलने लगा है। यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, सो मेनी पोस्ट आर कमिंग। सेफ्टी बिहेवियर कंसल्टेंट, यस सर। इसमें डिप्लोमा मांगते हैं सर। ठीक है, डिप्लोमा देखो एक सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है, डिप्लोमा 1 साल का होता है। यस सर। हम साइड बाय साइड करते रहे, मान लो तुम कोई जॉब कर रहे हो, यस सर। स्किल डेवलपमेंट करते रहो, उसी जॉब में हमें असिस्टेंट टू एसोसिएट, एसोसिएट टू प्रोफेसर बनना है तो 20 साल तो लग ही जाएंगे। यस सर। अरे हम साथ में कोई स्किल डेवलप कर लें, और व्हाई नॉट आई डेवलप माय ओन वे ऑफ लुकिंग एट द जॉब। देखो कोई तुमको 2 लाख रुपया महीना दे दें और कोई तुम्हें जॉब या स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दे दे, I think it's always better to have skill development opportunity rather than getting 2 lakh rupees. 2 लाख रुपीस का कोई वैल्यू नहीं है, स्किल का जो वैल्यू है अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट, देखो जिसमें मैं काम करता था डिफेंस में, 122 फैकल्टी तो हमारे इंस्टीट्यूट में खाली साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी प्रोफेसर 122। यहाँ कितने हैं? 4 है ना। 122 खाली एक इंस्टीट्यूट है, पर हम लोग अप्लाई तो करते नहीं, और हम लोग PhD तक नहीं लेते। We don't take PhD इवन, क्योंकि हमें लगता है कि PhD होने के बाद उनको चेंज कराना मुश्किल होता है, अनलर्न कराना मुश्किल है, अगर हमको अपने हिसाब से उनको लर्न कराना पड़ता है, और हम लोग अप्लाई तो करते नहीं। How many mental hospitals we have? Every hospital has a psychologist, and ज्यादातर हॉस्पिटल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वे आंध्रा में जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना, क्या नाम है, अन्नामलाई, अन्नामलाई से ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करके दे आर ऑल इनटू दिस।
और आप जो मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके, यू आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ दैट. Have you ever applied Wipro? Have you ever applied L&T? Did you ever apply? मैंने मान लो ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया है एंड L&T के साथ हमारा डिफेंस डील बहुत हुआ करता था, तो मैंने देखा L&T wants lot of psychologists. तो अप्लाई कैसे करना होता है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अबाउट योर ओन कैपेबिलिटी, कि आपके भीतर स्पेशल कैपेबिलिटी क्या है, उसमें भी एक सरप्राइज एलिमेंट होनी चाहिए. व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट इट एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन L&T और Wipro और TCS. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट. TCS में कभी अप्लाई किया? TCS में हमको सबको पता है कि खाली IT वालों को ही लेते हैं, बट अगर हम एम्प्लॉय वेलबींग में काम करते हैं, कभी अप्लाई TCS तो कभी एडवर्टाइज करेगा नहीं कि मेरे को एम्प्लॉय वेलबींग के लिए कोई चाहिए. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जॉब विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो टू जॉब. ओके, इसके बाद बताओ नेक्स्ट. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमने कभी अप्लाई किया है. सो मेनी जॉब्स आर देयर इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वो क्या है, इसमें क्या लिखा है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के बारे में जानते हैं ना हम लोग. ये क्या है, RDSO है, ये लखनऊ में है. ये RDSO बगल वाला है. RDSO में कभी अप्लाई किया आप लोगों ने? रेलवे में so many psychologists they are taking. Yes sir, यहाँ से एक है हमारे ठीक है गर्मा शास्त्र. वो तो बहुत से नहीं आते, बहुत से नहीं आते. फिर मिलिट्री में तो है ही है. और आगे चलो. और मिलिट्री में जो हम लोग रिसर्च करते हैं, these are the kinds of research we do. इसमें कोई किताब में तो ये सब है, how to select a Air Force pilot and how they are different from helicopter pilot, how they are different from cargo pilot. ये सब बुक में तो है नहीं. ये सब मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है इनके पास. तो and honestly speaking, there are many things we must learn. Many things. सब लोग हल्ला करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में वीमेन नहीं है. अरे 1992 से इंडियन आर्म फोर्सेस में वीमेन है, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है. आगे चलो. So many startups, so many, and all startups are not by psychologists, they are done by engineers. So COVID-19 में so many startups have come in by psychology, माने engineers turned psychologist. वो क्या कहते हैं, हमारे पास डिग्री क्या है कि हम लोग इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी पढ़ेंगे. We teach them a paper and they become psychologists. And we spent life on psychology and we could not become a psychologist. मार्केट सर्वे में पता है कि so many every product लॉन्च होने से पहले वो कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर हैप्पीनेस,
in IIT, we take a full-fledged course on consumer happiness. Full-fledged course. 200 नंबर के पेपर्स हैं consumer happiness. कि when you launch a product, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, फूड के टेस्ट कैसे होने चाहिए, लुक्रेटिवनेस कैसे जज करें, कॉग्निटिव बायसेस क्या क्या है, जजमेंटल बायसेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कि अगर हमें सेल करनी है कोई चीज तो मेमोरी इंपॉर्टेंट है या मोमेंट इंपॉर्टेंट है. आई मीन these are all done by psychologists only. और अल्टीमेटली कौन जा रहा है, you all know कौन जा रहा है. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, अभी बात हो रही थी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में. हाँ, कैलकाटा में आई फाउंड वन ऑफ माय स्टूडेंट, not direct student because I also belong to that university. She has come up with a hospital of autistic children, 7-story hospital only for autistic children, and a psychologist. She has kept several doctors under her supervision. And then one of them thought that I must do something else. What she did, she came up with another hospital, not hospital, कि ऑटिस्टिक को रिवर्स करना तो पॉसिबल नहीं है, इनको वोकेशनल स्किल कैसे सिखाएं. तो दे हैव कम अप विद ए रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग. और वो शुरू करते हैं कि शार्ट का बटन कैसे लगाया जाता है. ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है. शार्ट की बटनिंग से लेके वो एक्चुअली नट एंड बोल्ट का काम सिखाते हैं. एंड that girl must be at the age of less than of my daughter or my son, earning so much. She is paying 15 lakh as income tax per year. 15 lakhs income tax means you can understand how much is her income. Monthly 1.5 lakh she is giving income tax. I asked, तुम हमको ले लो. तो रिटायर होने के बाद मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा. तो बोले सर क्या करते हैं. तो अब आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट डोंट वेट फॉर जॉब. हाँ रखो नहीं, अच्छा ठीक है रखो. जस्ट डोंट वेट फॉर जॉब. जस्ट डोंट बी एंग्जियस अबाउट जॉब. क्रिएट जॉब. इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. Create job, and not only that, it would be a contribution for your own subject. It would be a self-actualization for people like us. कि हमारे बच्चे जो हैं, they did not beg like us. We begged for job. We begged for job, and you should not. So the question is, why to look for job every time? We can create our job. Having an MA degree in psychology is more than enough. More than enough. But you need a good team. You need a good attitude, not good aptitude. Aptitude काफी है. इस लेवल तक आप पहुंचे हैं तो aptitude काफी नहीं है आपके पास, तभी तो पहुंचे हैं, वो भी इस तरह की यूनिवर्सिटी से. तो think about it, what best you can do. और टेक्नोलॉजी का अर्थ है, पियर्सन का नाम सुने हो ना. तो पियर्सन is a British company. They have come here. They create a database of different tests. हमें से लेते हैं वो. पियर्सन में किसी ने काम किया आप लोगों में से? नहीं किया सर. बेस स्टैंडर्डाइज कर रहे थे तब. हाँ, वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डेटा हम लोगों से सबको देते हैं. वो 50-60 हजार रुपया महीना देते हैं. डेटा कलेक्ट कर दो, 50-60 हजार रुपया देते हैं. पियर्सन को भी अप्लाई कर दो. एंड दे हैव कम अप विद सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन टुडे. एंड दीस आर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. टैलेंट क्यूब, क्यूबिक्स, केनेक्सा, मफॉय. क्या किए ये लोग? सामू मैत्र करके हमारा एक स्टूडेंट और है, मेरे अंडर में पीएचडी किया था 93 में. वो भी मेरे से ज्यादा इनकम टैक्स देता है. हम तो इसी से देखते हैं कि कौन हमसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है. उसने क्या किया, 4 स्कूल ले लिए. 4 स्कूल कैलकाटा में.
और हर एक स्कूल में करीब 2-2,500 के बच्चे हैं। इनका कहना है कि ये बच्चा साइंस में जाएगा, आर्ट में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, इसके एप्टीट्यूड डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हम कर देंगे। सबसे 200 रुपया लेता है। माँ बाप को 200 रुपया देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 बच्चों से अगर 200 करके ले लिए और 4 स्कूल अगर है और हर साल वो काम वो कर रहा है और हमसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। आइडिया यही है ना, देखो सिंपल। अरे डीएटी हम लोग नहीं किए हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, और हम लाइसेंस्ड नहीं है डीएटी यूज करने के लिए। यस वी आर लाइसेंस्ड, हम क्लिनिकल केसेस नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास डीएमएनएसपी या एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ना हो तो। बट सिलेक्शन और इसमें रिक्रूटमेंट में आपको क्या प्रॉब्लम है? यू कैन ऑलवेज डू दैट, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसके पास 4 स्कूल है और 4 स्कूल से जो है वो मंथली उसका इनकम कुछ नहीं तो 2,25,30,000 का तो है ही है, कुछ नहीं है। तो आइडिया यही है, वी सेल आवर आइडियाज, वी डोंट सेल आवर, I mean we are selling our life actually, we are not selling our ideas. नेक्स्ट चलो, ये सब हो गया है, आगे चलो। ये तो कल हम डिस्कस किए हैं, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इसको आप बंद कर दीजिए और वो वाले पे आ जाइए। तो लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, दिस डिस्कशन। जॉब इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इन आवर हेड. It's not a problem of our mind, it's a problem of our mindset. That we are inferior to engineers, we are inferior to medical students. सब मेडिकल के पीछे जो भागते हैं, सब मेडिकल के पीछे भागते हैं। और मैं तो IIT में पढ़ा रहा हूँ ना, इससे पहले मैं मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा था। दोनों जगह एक डिजीज मैंने देखा। इस डिजीज को हम कहते हैं एप्रीहेंशन ऑफ हाइपोथेटिकल मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब वो है, हमने इसका कोई किताब में कोई रेफरेंस नहीं है। ये सब बच्चे जो है ना, दे आर ऑल टॉपर्स इन देयर स्कूल्स, ठीक है। IIT में आते हैं, जैसे मेरे हैप्पीनेस क्लास में 110 बच्चे हैं, सब टॉपर थे अपने अपने स्कूल पे। और IIT आने के बाद इनका रैंक आ जाता है, किसी का 90th, किसी का 100, किसी का 80th, और इनके माँ बाप कहते हैं बेटा तू तो स्कूल में कभी सेकंड नहीं आया, अभी तेरा 80th रैंक है। अब वो या तो सुसाइड करता है और नहीं तो एप्रीहेंशन ऑफ हाइपोथेटिकल मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हम इंजीनियरिंग में ना आकर मेडिकल में जाते तो अच्छा करते। फुल लाइफ इनका जो है रिपेंटेंस से खत्म हो जाता है, और ये रिपेंटेंस इज अ मेंटल कैंसर। If I don't know how to honor my own choice, then how can I expect that others will honor me? If I don't know how to honor my own choice, I can't expect even my partner, life partner I cannot expect that they will honor me. I have to respect my own choice. पर ये सब क्या करते हैं ना, इनको लगता है मैं तो अब इंजीनियरिंग में आके गलती की है, क्योंकि हम तो वहाँ फर्स्ट आते थे, यहाँ तो 80th रैंक है। बस माँ बाप खत्म कर दिए बच्चों का लाइफ। हम लोग वैसे ऐसा नहीं करते हैं ना, हमें लगता है हम ऑलरेडी खराब जगह पे हैं। इससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारा पोजीशन ऑलरेडी खराब है, अब इससे खराब तो हो ही नहीं सकते। These examples I am trying to give you not for joke. And I also do not want to refer myself. I am only trying to tell you that yes, it's possible. If I am a psychologist, I have come from pure humanities, history, logic and psychology लेकर हमने पास किया, और whatever I have done using simple psychological process. जैसे पीवी सिंधु बोलो, कश्यप बोलो या अभिनव बिंद्रा बोलो, सबको क्या सेल करता हूं मैं?
सेल करता हूँ रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट हम लोग सभी करते हैं, ये है ना कि रिएक्शन टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इफ हाउ कैन आई बेस्ट एनेक्ट माई रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम हम लोग जो क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं हम सोचते हैं इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, बेकार की काम है, कितना जल्दी मैंने रिएक्ट। जबकि स्प्रिंटर बोलो, बैडमिंटन को बोलो, शूटर्स बोलो, सबको रिएक्शन टाइम की जरूरत है, और रिएक्शन टाइम को तो कभी वैल्यू किए नहीं। एक शार्प शूटर जानते हो ना, इनको ट्रेनिंग देनी होती है हमको, और एक ये प्योर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इसके लिए टेस्ट हम लोगों ने डेवलप किया है कि कैसे हम शार्प शूटर को करें। ठीक है, वो ट्रेनिंग तुम लोगों को जरूरत है नहीं, पर हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। एक शार्प शूटर को एक गोली चलाने के लिए कम से कम 6.5 से 7 घंटा जो है वेट करना पड़ता है, उसको बंदूक लेकर रहना पड़ता है 6 से 6.5 घंटा। उनको सांस के साथ जो है ना उस एक्शन को, ट्रिगर का एक्शन को मिलाना होता है, उसको सिंक्रोनाइज करना होता है। जब तक वो सिंक्रोनाइज नहीं हुए, ट्रिगर चलाते समय आपका जो टारगेट है वो हट जाता है, उसको अलाइन करना होता है। ठीक है, और जैसे मान लो तुम सियाचिन जैसी जगह पे तुमको कोई शार्प शूटर यूज करनी है, 2 बार तुम शूट कर ही नहीं सकते, सेकंड टाइम शूट किए तो एवलेंस आ जाए, यू कांट डू इट। साउंड के बूमिंग सोनिक बूम से जो है देयर विल बी एवलेंस, यू कांट डू इट फॉर द सेकंड टाइम। These are challenges given to psychologists. But reaction time को हम कभी वैल्यू किए हैं? बताओ, कभी नहीं वैल्यू किए। चाहे वो अभिनव बिंद्रा को बोलो और गोपी चांद को बोलो, पीवी सिंधु को बोलो, काश्यप को बोलो, they are all big players. They have developed their own capabilities, but उसके पीछे साइंस को कभी अप्लाई किया हमने? नहीं किया। तो have a scientific attitude, what you know is more than enough। अब उसको अप्लाई करने का समय आया है। चलो उसमें आ जाओ, जब हम शुरू किए थे उसके ऊपर रिसर्च में, वो सेकंड वाला इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब शुरू किए थे इसमें, देन आई थॉट I will forget about job. Job is much more important for me. We should not beg for job. We should grab the job whatever the way I can get it. चलो आगे चलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर मैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। किसमें? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराधी पे। हाँ। तो सर अभी मैं पिछले 3 महीने से जो राजकीय संप्रेक्षण गृह सर होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ सर। ओके। वहाँ पे सर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए मतलब काउंसलिंग मतलब इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे होनी भी चाहिए, लेकिन सर वहाँ पे है नहीं, और मैं पिछले 2 महीने से वहाँ से कर भी रहा हूँ। तो सर मैं इसे फर्दर अपने करियर में कैसे सर इनहेंस करूँ? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जी सर। देखो तुमको अगर इसको कैरियर डेवलप करना है तो बेस्ट चाहिए कहीं कोई सर्टिफिकेट कोर्स पर। देखो मैक्सिमम जेल में चाहिए सर। मैंने डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ सर। तो यू अप्लाई टू प्रिजन ऑथोरिटीज। प्रिजन ऑथोरिटीज में इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, प्रिजन ऑथोरिटीज, सबको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के वो चाहिए। माइनर फेलोनीज, delinquencies, so many even psychopaths, जो एंटी सोशल बिहेवियर है, साइकोपैथ्स है, सबको चाहिए। तो व्हाई नॉट, देखो अप्लाई करने को तो तुम वेट मत करो, यू directly apply to those authorities, tell that this is my capability and I would like to do some job here। सर अभी वहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ, लोग वैल्यू भी कर रहे हैं सर, एक्सटेंड कर रहे हैं मेरे काम को, कह रहे हैं आप और दिन तक करिए, लेकिन सर उससे मैं अपने प्रोफेशन में सर कैसे, मतलब इम्पोर्टेंस भी वो ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, बट विज्ञापन या वैकेंसीज के थ्रू मैं कैसे उनमें करूँ ताकि मैं इनकम भी देखो वैकेंसीज तो वो निकालेंगे नहीं जी सर। वैकेंसीज अब जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, they will not come out with any vacancy। You can register your own society with 2-3 more people who would be doing it। अपना एक सोसाइटी रजिस्टर कर लो, those who have got similar capabilities,
और उसके बाद तुम स्कूल अथॉरिटीज को बोलो कि हम स्कूल में भी अगर डेलिंक्वेंट बच्चे हर स्कूल में 5% होते ही हैं, 5% हम आपको मदद करने को तैयार हैं। और स्कूल को कोई पैसा नहीं देना है, स्कूल को खाली ये एडवर्टाइज कर देना है कि अगर किसी बच्चों को लगता है कि डेलिंक्वेंट बिहेवियर है, इनके पेरेंट्स आके आपसे कंसल्ट करते हैं, आप एक सिंपल सा चार्ज कर सकते हो। शुरू करो मॉडेस्ट वे में, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, हर एक स्कूल में 5% बच्चे तो होते ही है डेलिंक्वेंट, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है तुम्हारा जेल के साथ या डेलिंक्वेंट एजेंसी के साथ, उसको आगे बढ़ाओ ऑर्गेनाइजेशन से, इधर उधर मत करो। डोंट थिंक ऑल्टरनेटिव थिंग। अगर इस एरिया में तुमको स्पेशलिटी डेवलप करनी है, करो, इसी एरिया में करो, और स्कूल इज द राइट प्लेस फॉर यू। थैंक यू सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन है इस सिलसिले में या मैं रिसर्च में आ जाऊँ? Any other question in this regard, or I can come to research? Okay, चलो नेक्स्ट। कल ये हम लोग डिस्कस किए हैं, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ रिसर्च टॉपिक। देखो रिसर्च टॉपिक जब आपसे लोग पूछते हैं ना, रिसर्च टॉपिक में ना ये 5 क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप बताओगे किसी को, थीसिस की टाइटल हार्वर्टिंग बताने की जरूरत नहीं है। वो आई मीन पीपल हेट इट जब आप डायरेक्टली बताते हो दिस इज माय रिसर्च टॉपिक। इट मींस सुपरवाइजर ने आपको रिसर्च टॉपिक दिए और आप उस रिसर्च टॉपिक को कमिट एंड वॉमिट कर रहे हैं। डोंट डू दैट बिकॉज रिसर्च इज योर जॉब, नॉट सुपरवाइजर। इट्स अ थैंकलेस जॉब फॉर सुपरवाइजर। For any supervisor, it's a thankless job, because if they are giving you some support, it's an additional support you are getting. Research is your job. If supervisor gives you some help, you must be obliged for that. But you can't demand it. You can't demand it from, because research you have come out of your own preference. So research topic को जब भी बताना हो, remember ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए आपके टॉपिक में। पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। टॉपिक जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बताते समय रिमेंबर इट मस्ट बी क्लियर, फोकस्ड, कंसाइज, कॉम्प्लेक्स एंड आर्गुएबल। Is it clear? Okay. So कोई एक एग्जांपल दे सकता है? आप बोलिए, how will you present your topic now? जो रिसर्च टॉपिक पहले बताओ। Illness, cognition, distress, and coping among cancer patients. हाँ, so among cancer patients, okay. So you have got किसी भी टॉपिक में 3 चीज होनी चाहिए: आउटकम वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, सब्जेक्ट वेरिएबल। मैंडेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट वेरिएबल। मैंडेटरी कि अगर ये 3 वेरिएबल नहीं है देन इट कैन नॉट बी अ रिसर्च टॉपिक, ओके। और 16 वर्ड्स के भीतर होनी चाहिए, इसलिए कॉन्साइज, इट शुड बी कॉन्साइज। क्लियर होनी चाहिए, माने एनीबॉडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और आपने कहा Illness, cognition. इलनेस कॉग्निशन, लोग समझेंगे नहीं। How people make sense of the disease. इलनेस कॉग्निशन को अगर किसी नॉन साइकोलॉजिस्ट को समझाना है, कैसे समझाना? How people make sense of the disease. What perceptions and beliefs they have about the disease, a particular disease. ओके, तो पहले वो बता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। आई हैव डन अ पीस ऑफ रिसर्च कीपिंग this problem in mind. How do I perceive my own disease? So illness cognition is how I perceive my disease, and then your subject variable is cancer. So illness cognition amongst Cancer patients. that's all. But
it's not a just descriptive study. No. It's a correlational study. Yes. The correlation between what? Illness cognition by cancer patients तो एक group है. Illness cognition Is one way to do. then distress and with distress and coping. Distress and coping is हाँ तो देखो डिस्ट्रेस तो फोकस तो तभी हो पाएगी ये जब तक आप बोलो कि डिस्ट्रेस एंड कोपिंग देन पीपल विल अंडरस्टैंड अदरवाइज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड भाई कैंसर पेशेंट को डिस्ट्रेस है एंड हाउ डू दे कोप अदरवाइज अगर आप बता दो कि इलनेस कॉग्निशन इन कैंसर पेशेंट नॉन साइकोलॉजिस्ट विल नॉट अंडरस्टैंड इट पर्टिकुलरली जो चेयरमैन ऑफ द कमिटी बनते हैं they are not from psychology. Suppose director at this institute, vice chancellor at this university, nobody is from psychology. So you have to clarify that what is your topic, and it must be complex. What does it mean? अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है तो रिसर्च टॉपिक ही नहीं है, तो रिसर्च करने की जरूरत क्या है? What is the point in doing research? So sufficiently भाई कैंसर पेशेंट को तो डिस्ट्रेस है ही है, बट व्हाई इट इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक? Because it needs lots of argument to prove. नो लॉट्स ऑफ देखो कैंसर तो पेशेंट के साथ कैंसर पेशेंट के लिए डिस्ट्रेस होएगा, बट एवरीबडी डू नॉट थिंक दैट दे आर yesterday I gave you the example of my maid servant. She didn't realize that it's such a deadly disease. So how do I perceive that disease? हम उसके साथ कोपिंग सब एक जैसे नहीं करते. तो अगर आप अच्छे से कोपिंग करो आपकी इम्यूनोडेफिशिएंसी विल रिड्यूस और इम्यूनोकॉम्पिटेंसी विल इंक्रीज. तो अगर हम इम्यूनोकॉम्पिटेंसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ इंक्रीज कर सकें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग ए क्वालिटी लाइफ, देखो लाइफ डेथ तो हमारे हाथ में नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमारे हाथ में है ना. एज ए साइकोलॉजिस्ट यू मस्ट हैव दिस कि इट्स इन माय हैंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस अगर करें तो इम्यूनोकॉम्पिटेंसी भी बढ़े. इम्यूनोकॉम्पिटेंसी अगर बढ़े तो सर्वाइवेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज. तो इसलिए ये सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स, इसका कोई क्लियर हम अगर बोले कैंसर है तो मरना ही मरना है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से नहीं चलेगा, हमें इसको कॉम्प्लेक्स बनानी है रिसर्च टॉपिक को, और आर्गुएबल होना चाहिए, ओपन टू डिबेट. लोग कहेंगे अच्छा तो फिर साइकोलॉजी वाले जो है कैंसर का अगर ट्रीटमेंट ना भी हो उसको ट्रीट कर सकता, ऐसा भी नहीं है. तो आर्गुएबिलिटी क्या है कि if I can add psychological science with medical science, okay, then probably its composite impact would be much higher than the individual impact of either psychological science or medical science. इसलिए ये arguable नहीं है. So it has to be arguable, it has to be complex, it has to be concise, it has to be focused, it has to be clear. तो आपको जब प्रेजेंट करना होगा अपना तो यू मेक श्योर दैट ऑल दिस कंपोनेंट्स आर देयर. देखो एक एग्जांपल भी देंगे अगले स्लाइड में कैसे कौन सा कैसे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ फिर इसमें आएंगे. देखो अनक्लियर रिसर्च क्वेश्चन किसे कहते हैं? क्लियर रिसर्च क्वेश्चन पहले पढ़ते थे. Do you understand? Yes, sir. Second अलग पढ़ो और इजी रहेगा. What is the effect of on the environment from global warming? सब लोग यही पूछते हैं. What is the effect on the environment from global warming? It's not a good research question at all. Good research question. What is the most significant effect of glacial melting on the lives of penguins in Antarctica? Specific होना चाहिए ना. भाई हम किस इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इम्पैक्ट ऑन एनिमल, किस चीज की इम्पैक्ट देखना चाहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग
किस चीज के? ग्लोबल वार्मिंग तो इवन एयर कंडीशनर का जो वो है एग्जॉस्ट है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग है, तो हमें तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सीइंग फ्रॉम ग्लेशियर मेल्टिंग, कितने क्यूबिक मीटर का जो है ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है एवरी आवर फ्रॉम अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन, एंड इसका एक इम्पैक्ट पेंगुइन पे पड़ रहा है कि नहीं, देन इट बिकम्स ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो अगर आप टॉप वाला बोलो तो कोई आई मीन इट्स नॉट ए गुड रिसर्च क्वेश्चन, अगर बॉटम वाला बोलो पीपल विल अंडरस्टैंड दैट इट्स ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। ओके, तो गुड रिसर्च क्वेश्चन के लिए आपको आउटकम वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, सब्जेक्ट वेरिएबल, ये तीन चीज मिनिमम मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके इट बिकम्स ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। ओके, बैठ में आ जाओ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, देख पा रहे? अच्छा, आप उधर से देखिए। ये देखो साइकोलॉजी वाले हम कुछ टॉपिक हम सब साइंसेस के रखते हैं। एप्पल एंड आईफोन्स एंड आवर अटेंशन स्पैन, कोई रिसर्च करता है इसके ऊपर? कोई नहीं करता। क्या मोबाइल फोन जो यूज करते हैं इससे हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है? यस, हो रहा है। पहले एक चिट्ठी किसी के मिलती थी या ईमेल, तो वी यूज्ड टू रिमेंबर इट फॉर डेज। अभी तो हर सेकंड पे कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, हर बोलो एक घंटा पहले कौन कौन से मैसेज आपने पढ़ा, कोई याद नहीं रहेगा। आईआईटी में हमारा एक स्टूडेंट है, वो क्लास में कहते हैं सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो, आप लिंक दे दो। तो लिंक से कम चल जाएगा। तो our attentional span has gone down so much, but ये काम who should do this work? Psychologists will do, but none of us are doing these works. एक research topic देखो, the culture of procrastination and its roots in technology. Procrastination माने you know ना? टेक्नोलॉजी में इसकी क्या रूट है? सब होता रहेगा, सब हो जाएगा। I mean, इतना जल्दी भी क्या है, मगर procrastination is like a credit card. When you use it, very good. But when the bill comes, it becomes a debit card. Sorry. Yeah, we have to realize it. It's like a credit card. जब use करते हो तो मुफ्त में तुमको मकान मिल जा रहा है, गाड़ी मिल जा रही है, और अब जब बिल आने के बाद आपको पता चलता है कि डेबिट कार्ड कितना चालू है, वही वाली स्थिति है। तो टेक्नोलॉजी इज पुशिंग अस मोर टुवर्ड्स प्रोक्रास्टिनेशन। तो ठीक है, पहले जैसे ट्रेन पकड़नी हो तो 2 दिन पहले से हम लोग तैयारी करते हैं, पूछते थे, अब 15 मिनट पहले लोग देख लेते हैं। ठीक है, it's a good advantage, but एक लड़का मैं जानता हूँ, मेरे अंडर में नहीं, she is doing research on augmentation, automation and autonomy, how it is affecting our performance. Augmentation माने without the help of technology, personal capability. Automation माने your capability with the assistance of technology, and autonomy माने आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, it will come to your mobile or to your message board. So augmentation, automation and autonomy, which is more pushing us towards having bad performance. So these are topics, research topics, which are away from our day-to-day topics. वैसे सोशियोलॉजी में देख लो, the motivational analysis of population growth. So planning commission has never done any such research. Misinformation in the internet age. आज से जो है CNN, BBC, they have all stopped broadcasting in Russia, and Russian broadcasting is well आज से ये लागू हो गया है, because they are saying
he will stop doing this broadcasting because it is spreading more misinformation as compared to right information. तो एक टाइम आएगा जो टीवी में न्यूज भी बंद कर देंगे लोग क्योंकि इट इज स्प्रेडिंग मोर मिस इन्फॉर्मेशन. इसकी इम्पैक्ट क्या है? तो आई थिंक sociology people, these topics came to my mind. I thought I'll tell you. I mean, you can do something which is not traditional. Then only surprise element will come. Then people will ask a second question after this topic से. अगर जो पूछेंगे नहीं, अच्छा आपने ये काम किया और क्या किया, इंटरव्यू में यही कहेंगे और क्या किया. लेकिन जब ट्रेडिशनल टॉपिक पे काम करेंगे तो वो कहेंगे और क्या किया. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो टॉपिक चुन लिया है उसे नॉन ट्रेडिशनल नहीं बनाया जा सकता है. कोई भी टॉपिक आप काम किए हो उसको नॉन ट्रेडिशनल वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई एम ट्राइंग टू चेंज योर माइंडसेट कि देखो हम सब लोग नॉन ट्रेडिशनल वे में पीएचडी किया. मैंने पीएचडी किया 82 में. मैंने भी वही, हमने इमोशन पे काम किए पर हमने सोचा थोड़ा एक नॉन ट्रेडिशनल कंपोनेंट डालें कि हम लोग फेस रीड कर पाते हैं. तो उन दिनों ये नॉन ट्रेडिशनल हुआ करता था. तो मोस्ट ऑफ माय वर्क्स आर ऑन फेस, हाउ आई रिकॉग्नाइज फेस एंड व्हाई people fail to whether we express pure emotion or not. None of us express pure emotion, all blended emotion. तो हम 81 में उस पे पीएचडी किए, ब्लेंडेड इमोशन एंड प्योर इमोशन. ठीक है, और फेस से मैंने किया. क्वेश्चन देखिए, आई हैवंट डन एनीथिंग ग्रेट. फेस पे काम thousands of people are doing, but I utilized it on mental patients. Can I use some kind of screening technique based on face so that I can tell that these are psychotic patients, these are neurotic patients, these are general medical patients. So I tried to make use of it as a deliverable, and that paid me so well. That really gave me so much of trust. So what I achieved through trial and error, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी ट्रायल एंड एरर के थ्रू जाओ. Such lessons should help you to make your topic, whatever you have decided, little non-traditional, little more interesting, little more deliverable, little more appropriate to contemporariness, and little more away from traditionality. चलो नेक्स्ट पे चलो. हो गया. इसके बाद ये एक ऐसा है कि दिख नहीं रहा है ना, ठीक से दिख रहा है. तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक टेबल में इसको प्रेजेंट कर दिया कि मेजर रिसर्च मेथड क्या है, स्टेप्स क्या क्या है, मेजर गोल्स रिसर्च का क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है. एक टेबल पे मैंने रख लिया. जैसे इंटरव्यू के लिए ना ये बड़ा काम आता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वही कल जो हमने डिस्कस कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन. और फिर आपको जब आंसर देनी होगी तो आपको बताना पड़ेगा आपकी रिसर्च जो है क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म शो कर रहा है, कैसे इसको अप्लाई करो. तो इतने में जो है you will get lot of you will develop lot of strength within you, that yes, you could answer things so well. Likewise, आपकी रिसर्च में स्ट्रेटेजी क्या है? Is it experimental work, descriptive work, correlational work, observational work? क्या टाइप, which टाइप? then आपका रिसर्च जो है उसमें ह्यूरिस्टिक्स क्या है? ह्यूरिस्टिक्स माने the art and science of doing literature survey. Yesterday we talked about systematic review and meta-analysis. तो हो सकता है आपने meta-analysis ना किया हो, तो you can always say कि रिसर्च में मैंने systematic review किए, पर पोस्ट डॉक्टरल में हम उसे meta-analytical review मैं meta-analytical review करने जा रहा हूँ. तो you can always say it's a good answer for you.
देन उसके बाद आपका लॉजिस्टिक्स क्या क्या है, टूल क्या क्या यूज किए, व्हाट आर द टूल्स दैट यू हैव यूज्ड। ओके, तो जो नॉन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा सोचते हैं आप लोगों के टूल्स क्या है, क्वेश्चनर है ना, तो एवरीबॉडी सेज ओ साइकोलॉजिकल टूल मैंने क्वेश्चनर, भाई साइकोलॉजिकल टूल में क्वेश्चनर तो इज जस्ट वन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर टूल्स। अगर कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा टूल है जो आप बताओ जो साइकोलॉजिकल टूल हो सकता है, any tool can be made psychological based on the kind of scaling technique that you use, isn't it? हम लोग साइकोलॉजिकल स्केलिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेटिंग एंड रैंकिंग इज द मेथड दैट वी मोर ऑफन यूज, बट साइकोलॉजिकल टूल्स में आप चाहो तो फिजिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई कर लो, इवन साइकोफिजिक्स हैज डेवलप्ड आउट ऑफ दैट। आप रेशियो स्केल को यूज कर लो, आप इंटरवल स्केल को यूज कर लो, तो टूल की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। जैसे हमसे लोगों ने पूछा डीआरडीओ में कि हम लोग जो काउंट डाउन करते हैं रॉकेट लॉन्च से पहले, जो काउंट डाउन हम किस रेट से करें, किस रेशियो से करें, ताकि अगर हमको फॉल्ट मिल जाए तो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन हम लास्ट मोमेंट तक कर सकें। भाई ये भी एक साइकोलॉजी, यू विल नॉट बिलीव इवन रॉकेट लॉन्चिंग से पहले साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमने क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपका जो विजन है उसको ब्रॉडन करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू क्वेश्चनर एंड पेन एंड पेपर पेंसिल, नॉट लिमिटेड टू दैट। मे बी समय मिले तो आज ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ टेक्निक, ऐसे हम लोग पर्सनैलिटी असेसमेंट भी करते हैं। जैसे इफ आई हैव ए सीसीटीवी फुटेज ऑफ दिस क्लास, I can do even the personality assessment of each one of you. हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपके सिटिंग पोस्चर से मैं करूँगा, सिटिंग पोस्चर से। जैसे एग्जामिनर इन्विजिलेटर कैसे पकड़ लेते हैं भाई कौन सी नकल कर रहा है, सिटिंग पोस्चर से। जो नकल करेगा चेयर का, कुर्सी का फुल स्पेस यूज कर ही नहीं सकता, they will not be able to use the full chair, है ना। तो परसों एक जने को पकड़ा गया, वो एक लड़का पकड़ा गया, वो कान में जो है ना वो सर्जिकली उसको वो इम्प्लांट कर दिए थे, उसको माइक्रोफोन ब्लूटूथ लगाए थे ना, न्यूज पेपर में आया ना। हाँ, तो कैसे पकड़ लेते हैं लोग, हम सबको पता है वो टेक्निक कि हम कैसे पकड़ते हैं, मगर साइंटिफिक रीजन हमें पता नहीं है। We can all do that. So logistics के बाद आता है tactics. Tactics is research methodology. Tactics is not statistics. लोग पूछते हैं कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा स्टैटिस्टिक्स लेना है, तो स्टैटिस्टिक्स से लॉजिस्टिक टैक्टिक्स का कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्युटली आपको जो डेटा मिल जाए वो डेटा आप क्वालिटेटिवली करोगे क्वांटिटेटिवली करोगे वो बाद की बात है, पर रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आप डिसाइड करो। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम योर डेटा एनालिसिस, तो डेटा एनालिसिस कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। ये सारा हो जाए तो उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है। हाउ यू कैन कम्युनिकेट दैट, मैंने एक स्लाइड आपके उसमें रख दिए हैं, उसमें ये भी है कि पेपर को लिखना कैसे चाहिए, एक एम्पेरिकल पेपर। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, Where do we make mistake? हमें अंग्रेजी की प्रॉब्लम नहीं है, all of us can write better English than anybody else. We are grammatically correct, but we write repetitive English. Yes. We try to overemphasize things which is not required. And often they give the feedback that it is not for our readers. Not for our readers. They write, वही हम लोग लिखते हैं, हम लोग absolutely correct. We will not write that we are correct. There is nothing called absolutely correct. We are correct is fine. There is nothing called true fact. This is only fact. If I write in my thesis a study of such and such, आप study ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो, तो why study of? और आप नेचर एंड साइंस को खोल के बने आर्टिकल पढ़ के देखो, मे बी ऑफ नॉट योर इंटरेस्ट दैट सब्जेक्ट मैटर, पर ये तो देखो वो टाइटल कैसे लिखते हैं
right hemisphere damage impairs the recognition of negative emotion. This is the title. Finding को title में एक word में sentence में देखें. Right hemisphere damage impairs the perception of negative emotions. This is the title. हम क्या लिखेंगे? A study of brain damage patients on their perception of emotion. ऐसे लिखेंगे ना? कोई नहीं पब्लिश करेगा इसको, कोई नहीं पब्लिश करेगा. तो इसका मतलब आप पूरे स्टडी को पढ़ो और उसके बाद जानो कि क्या है फाइंडिंग. पर जिसको इंटरेस्ट है वो तो टाइटल से पता लगा लेगा. तो इट शुड बी ए डायरेक्ट टाइटल rather than इनडायरेक्ट टाइटल. अभी मैंने एक केसेस एग्जामिन किए, क्या है वो, बस 2 ही वर्ड है इसमें, इमोशन एंड साइकोपैथी. इसका क्या मतलब है? इमोशन एंड साइकोपैथी. कैन यू कॉल इट इज ए टाइटल? It's more like a book title. It's like a chapter title. So title has to have those qualities, otherwise it will not be treated as title. So anyway, but ये जो चार्ट है ये अच्छा लग रहा है ना, पर ये चार्ट मैंने नहीं बनाया. ये क्लास 10 के साइकोलॉजी बुक में है और हम और प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी दोनों मिलके जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का जो बुक है अब उस पे ही है. तो देखो, तो व्हेन सेकंड चैप्टर में है ना, तो आई वाज देयर, प्रोफेसर त्रिपाठी वाज आल्सो देयर. तो क्वेश्चन ये, बट वी हैव नॉट डन इट, somebody else has done it, somebody else has done it. सवाल ये उठता है ना, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज जो है ना, इट शुड कम फ्रॉम द बेसिक्स. बेसिक क्लियर हो तो सब कुछ क्लियर है. अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो you are fortunate to have your basics clear in a university like this. But बेसिक में अगर आप बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा. पीएचडी में आपको डायरेक्टेड बेसिक रिसर्च में जाना पड़ेगा, कोई भी रिसर्च टॉपिक हो. और पोस्ट पीएचडी में आपको डायरेक्टेड बेसिक रिसर्च से अप्लाइड या ट्रांसलेशनल रिसर्च में जाना पड़ेगा. और ट्रांसलेशनल रिसर्च से अल्टीमेटली आपको मार्केट में जाना है तो एंड यूजर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा. जब तक एंड यूजर इंटीग्रेशन में नहीं पहुंचे, अभी नोकिया ने ये डिसाइड किया है कि स्मार्टफोन को, जो पहले का जो फोन हुआ करता था जिसमें क्लियर दिखता था, छोटे छोटे फोन जो है, उस तरह का मॉडल बनाएंगे. क्योंकि मार्केट सर्वे के बाद इन्होंने पाया कि दिस इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्मल पीपल. तुम लोगों के लिए ठीक है, बट हम लोगों के लिए इट्स टू मच फॉर अस, टू मच. तो हाउ टू मेक इट यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली माने एंड यूजर इंटीग्रेशन. और एंड यूजर इंटीग्रेशन में जब आपका रिसर्च माने जब ये पाया जाता है कि नो, इट्स दिस टेक्नोलॉजी में भी गुड बट इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली, तब हम मार्क 1 से मार्क 2 पे जाते हैं. मार्क 2 से, जैसे गाड़ी के मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 करते हैं ना, वो साइकिल जो है चलती है. दैट साइकिल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेथड और मेथडोलॉजी. हाँ, मेथडोलॉजी माने जैसे साइकी एंड साइकोलॉजी है. यस सर. मेथड का जो साइंस है उसे मेथडोलॉजी कहते हैं. यस सर. और जो मेथड की जो कैटेगरीज है उसे मेथड कहते हैं. सो क्या साइंटिफिकली जब हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं मेथड्स को, एंड द साइंस बिहाइंड इट, व्हाई डू आई कॉल इट क्वालिटेटिव, व्हाई डू आई कॉल इट एज क्वांटिटेटिव, then it becomes a methodology. Logy is logos. Yes sir. That logos means science. So science of method is called methodology. Okay. चलो ये तो हो गया है. देखो, conduct of research में इसको पढ़ लो. रिसर्च करते समय I may not be doing a very grand research, but कम से कम ये principles क्लियर होनी चाहिए आपके रिसर्च में. ट्रूथफुलनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट. मेकिंग रिसर्च डिलीवरेबल टू द सोसाइटी, बिकॉज you think that you are utilizing your time, energy, money,
only. But how much government is paying for you? It's also a subsidy. They are giving you a room, air conditioned room, a table, a chair, a water, a toilet, a little bit of support through books. But government is also, and where from the money is coming? From everybody's tax. So unless we make our research deliverable to the society, then it would not be a good piece of research. It just can't remain in one corner of the library. It can't. And it cannot be a mad rush. So I'll leave all these things with you. So we have a tea time now. Maybe चलिए, just 10 minutes break they can have हाँ, tea. चलिए, आप भी चलिए। थोड़ा रिलैक्स कर लें। ठीक है। आप लोग अब तो ये कोई अच्छा ठीक है वापस आके करेंगे। हॉल में आप लोग चाय लेके कम बैक आपको टेल देंगे। आप सब उधर आके